Good morning everyone and welcome to the class. We are doing a chapter Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age, and in this under this chapter we were discussing that during the British rule the tribals started feeling some problems. They started facing some problems. And what was the problem? The problem was that the British wanted to use the forest resources of our country for their own benefit, and for that purpose they started to interfere in the this matter. They started to interfere in the forest reserves of the country, and in this regard, when they started interfering in the forest of the country, in the forest areas of the country, the life of tribals started to get affected by this. And in this regard, first of all, we will discuss how was the life of these tribals, what they used to do in order to earn their livelihood. First of all, we have seen that they used to do jhum cultivation. The jhum cultivation is the safety cultivation in which they cleanse the patches of forest land, and they burn the green cover on the ground, and then that ash was mixed in the soil, which was very useful for the soil because it contained potash. And then the seeds were broadcasted in the soil, and after this crop, after harvesting of the crop, they leave that place so that that particular area should regain its fertility, and then they go to some another place. That is why it is called sifting cultivation. So this was done at that time, especially in the hilly and forested areas of northeast and central India. And it was very much important for the tribals to move freely within the forest, because they used to do sifting cultivation, and if their movement was to be stopped, then they were going to be affected by that, है ना. तो उनके मूवमेंट को रोका गया, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आई. और अब हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट देख रहे थे, दैट सम ट्राइबल्स वर hunters and gatherers. So these hunter and gatherers, they used to collect so many food items from the forest. They used to hunt the animal, and in this regard we were discussing about the khons, है ना. हम लोग खोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ये खोन्स जो है, ये ट्राइबल हमें कहाँ मिलती है? ये ट्राइबल उड़ीसा की ट्राइबल है, फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा. दे लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, एंड they used to do hunting activity. They used to collect fruits and roots, है ना, from the forest, and then they also used to extract oil from the seeds of sal and mahua, and this oil was used for the cooking purpose, है ना. And not only this, we have also discussed that these people, these tribals, khons, they used so many shrubs and herbs for medicinal purposes, है ना. If there was any kind of medicinal need, then that need was also satisfied by the forest only, है ना. So not only this, they also used to sell forest produces in the local market, and by selling these forest produces they earn some money, and that was very useful for them. So what we find that the local weavers and leather workers, they usually turn to these khons when they needed some supplies of like kusum and palas flowers, so that these were the natural dyes, है ना. जैसे उनको अपने क्लोथ को कलर करना है, लेदर को कलर करना है, तो अगर क्लोथ को कलर करना है तो वीवर्स लेदर को कलर करना है, तो दैट लेदर वर्कर्स वो आते थे इनके पास, ताकि वो कुसुम और पलास जैसे जो फ्लावर्स हैं वो उनको मिल जाए, जिससे कि वो नेचुरल कलर प्रोड्यूस करके अपने कपड़े को, अपने
इसको लेदर को कलर कर सकें, है ना। तो इस तरह से जो लोकल ट्रेडर्स होते थे उनके भी नीड्स ये पूरे करते थे। अब हम देखेंगे कि these tribal people were doing so many things, but there were also situation when they needed some supplies, like they needed supply of rice or other grains, and they were not having those grains at their own. They were not producing, they were not cultivating these grains. So in that situation, they needed to exchange goods, है ना. So these tribals, they used to exchange goods also. Now what do we mean by exchange of goods? Exchange of goods का यही मतलब हो रहा है कि to get what they needed, in return for their valuable forest produce. If they are not hunters, they are hunters and gatherers, they are not the cultivators, है ना. तो कल्टिवेटर नहीं है, अब वो हंटर और गैदरर है, तो ऑब्वियसली उनको राइस और वीट जैसे जो ग्रेन्स हैं उनकी नीड होगी. अब उनके पास राइस और ग्रेन तो नहीं है, लेकिन अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो वो क्या करेंगे कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनके पास है उसको दे करके उसके बदले में क्या लेंगे, उसके बदले में राइस एंड ग्रेन्स लेंगे. दिस इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स. जो चीज़ें हमारे पास है वो हमने दूसरे को दे दिया, और जो दूसरे के पास था वो हमने ले लिया. हमारे पास क्या है, ये ट्राइबल्स हैं, है ना, और ये हम कह सकते हैं कि विलेजर्स हैं. ट्राइबल्स के पास क्या है, ट्राइबल्स के पास है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना. और ये ट्राइबल्स के पास जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल, है ना. तो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है ये दे देंगे विलेजर्स को या ट्रेडर्स को, जिसको भी जहाँ से भी उन्हें अपने मनचाहा सामान मिल सके, और फिर विलेजर्स से वो क्या ले लेंगे, राइस और वीट जैसे ग्रेन्स ले लेंगे. तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी मिलता था. ठीक है, कभी एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी होता था, कभी कभी क्या होता था, उनको खरीदना भी पड़ता था. they have to buy some goods also with the small amount of earning they had. उनके पास पैसे नहीं होते थे. these people were not having money, है ना. तो उनके लिए मतलब ख़रीदना बहुत मुश्किल होता था, टू बाई समथिंग. बट कभी कभी ऐसी भी ज़रूरत हो जाती थी कि एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, इस तरह का नहीं वो मिल पा रहा है कि हमें जिससे जो सामान चाहिए उसको भी वही सामान चाहिए जो हमारे पास है ना. तभी तो एक्सचेंज होगा ना. मान लो कि कोई वैसा विलेजर मिल ही नहीं रहा है जिसको कि कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए, तो फिर क्या होगा, उनको तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उनके सामान को जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा. तो वैसे केस में वो क्या करते थे, वो परचेज़ भी करते थे, है ना. वो ख़रीद करके गुड्स अपना जो भी उनके पास पैसे होते थे उससे सामान भी वो ख़रीदते थे. और कभी कभी वो क्या करते थे कि कुछ जैसे विलेजेस में जा कर के किसी भी तरह का काम, ऑड जॉब्स जिसको हम कहेंगे, वो भी वो करते थे. ठीक है. सो हम देख रहे हैं वो क्या कैसे कैसे करते थे. एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, देन परचेजिंग ऑफ गुड्स भी हो रहा है ना. So now we are doing about hunters and gatherers, है ना. So besides being hunter and gatherers, they also used to do exchange of goods. Sometimes they also have to purchase the goods. Purchasing the goods. And not only this, many times they have to do some odd jobs also, है ना. They did odd jobs in the villages. विलेजेस में वो ऑड जॉब्स भी करते थे. ऑड जॉब्स जैसे कि
किसी को कोई सामान लोड करना है ना, या फिर कहीं पर सपोज़ रोड बिल्डिंग हो रहा है, या फिर कहीं पर किसी भी फील्ड में फार्मिंग एक्टिविटी जो हो रही है उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो वो लेबर का काम भी कर देते थे वो। इस तरह से वो कई तरह के काम करते थे, ठीक है। और जब वो किसी भी गांव में जाकर के इस तरह के आउट जॉब्स करते थे तो उसके बदले में या तो उन्हें अनाज मिल जाता था, ग्रेन्स, जो कि राइस और व्हीट, जो कि वो प्रोड्यूस नहीं करते थे बिकॉज दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स, है ना। तो इस तरह से वो डिफरेंट तरह से अपनी लाइफ को, बहुत मतलब आसान तो नहीं था, बहुत टफ लाइफ थी। अब इसमें कुछ ऐसे भी हम पाते हैं, कुछ ऐसे भी ट्राइबल्स से लाइक बैगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो कि दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते थे। मतलब उनके लिए ये उनके डिग्निटी के अगेंस्ट था कि वो गांव में जा कर के जो लोग हैं उनके घरों के काम करें, उनके लिए कुछ काम करें। तो दे डिड नॉट वांट टू डू जॉब्स फॉर अदर्स। ऐसे ही लोग जो हैं, इनको इनमें एक जो पर्टिकुलर जाति है वो है बैगाज की, बैगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया। ओके, सो ये बैगाज में जो थे दे वर ऑल्सो हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है। बट वो कहीं और जा कर के कोई ऐसा काम करना उन्हें अपनी डिग्निटी के अगेंस्ट लगता था। बैगाज ऑफ they considered themselves as the people of the forest, है ना। These Bagas, they considered themselves as the people of the forest. It means that कि वो फॉरेस्ट के पीपल हैं और वो फॉरेस्ट के बाहर जाके विलेजर्स के काम करना ये उनके डिग्निटी के अगेंस्ट है, वो बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके जो भी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ होती थी उसके लिए उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। जो चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो उसमें नहीं दिक्कत है, जो भी फॉरेस्ट से उनको मिल जा रहा है वो चीज़ें तो वो ईज़िली उनके लिए अवेलेबल हो रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ट्राइबल ग्रुप्स को बहुत ही मुश्किल होती थी मिलना, है ना। और इसके कारण उन्हें कई बार क्या होता था, जो ट्रेडर्स होते थे, जो मनी लेंडर्स होते थे, उन पे डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि कुछ चीज़ें जिनको कि वो परचेज़ ही कर सकते थे। जैसे हमने देखा पहले तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट से जो भी इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी हो जाए, नहीं पूरी हुई तो वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स में काम हो गया तो ठीक है, वहाँ पर भी नहीं हुआ तो फिर वो विलेजेस में जाकर के ऑड फंक्शंस कर रहे हैं, ऑड वर्क्स कर रहे हैं। उसके बाद भी सपोज उनको काम नहीं मिला, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो काम खोज रहे हैं बट उनको कोई काम नहीं मिला, तो फिर वो प्रॉब्लम में आते थे। तो ऐसे केस में उनको क्या होती थी, उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती थी, बिकॉज़ अगर उन्हें सरवाइव करना है तो सामान चाहिए, खाने पीने की चीज़ें जो कि हमारी बेसिक नीड्स होती है। तो अब वो अगर कहीं भी किसी भी तरह से पूरी नहीं हो पा रही है तो उनको पैसे की ज़रूरत होगी। पैसे से तो वो खरीद सकते हैं लेकिन पैसा उनके पास रहता नहीं। तो ऐसे केस में उनको क्या हो जाता था कि दे यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। अब उनको क्या होता था कि इन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स से उनको कर्ज लेना पड़ता था, दे हैव टू टेक लोन्स। ये लास्ट उनका मतलब जब कुछ भी नहीं हो पाता था, सब कुछ सारे रास्ते बंद हो जाते थे, तो फिर लास्ट में उनको लोन लेना पड़ता था। लोन फ्रॉम ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, ठीक है। मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से उन्हें लोन लेना पड़ता था। अब जब वो उनसे अगर वो लोन ले लेते थे तो फिर क्या होता था कि वो बहुत मुश्किल में फंस जाते थे। जैसे मनी लेंडर्स से तो वो क्या करते थे, कैश लेते थे, है ना। मनी लेंडर्स तो उनको कैश देते थे, लेकिन ये कैश जो था वो उनको पूरे इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता था और इंटरेस्ट का रेट भी बहुत हाई होता था। फिर ये ट्राइबल्स दे वर नॉट लिटरेट पीपल, तो इनको बहुत ज़्यादा सो कहें कि जो मनी लेंडर्स होते थे वो बेफूल करते थे, मूर्ख बनाते थे। थोड़े से पैसे में भी उनको बहुत ज़्यादा वापस करना पड़ता था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते थे, है ना। तो इस तरह से ट्राइबल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। फिर जब ट्रेडर्स जो थे
ट्रेडर्स से क्या होता था कि वो जैसे कि ट्रेडर्स जो होते थे वो कई सारी चीज़ लेकर के आते थे बेचने के लिए। अब ये जो ट्राइबल्स हैं उन ट्रेडर्स से सामान सपोज करो ले लिया बट पैसे नहीं दिए, अब वो उनसे बाद में फिर आके पैसे ले रहे हैं और ज़्यादा पैसे लेते थे, हाई प्राइस पे बेचते थे। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइबल्स हैं वो तो एकदम मतलब फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं, उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी ही नहीं, दे आर नॉट नोइंग द आउटर वर्ल्ड। तो जब हम बाहर की दुनिया के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो कोई भी हमें मूर्ख बना सकता है। तो यही होता था, ट्रेडर्स उनको जो भी सामान देते थे, अच्छा पैसे तो आज नहीं लेंगे, ठीक है हम पैसे बाद में आपसे लेंगे, लेकिन वो रेट बहुत हाई लगा देते थे, है ना। तो ट्राइबल्स के लिए ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जहाँ तक झूम कल्टीवेशन करने वाले लोग थे उनको प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आई, उनको प्रॉब्लम सिर्फ तब आई क्योंकि वो अपनी चीज़ें तो प्रोड्यूस कर ले रहे थे, बाकी चीज़ें उनके सराउंडिंग से मिल जा रही थी। उनको प्रॉब्लम तब आई जब उनके मूवमेंट पे रोक लगाया गया बाय द ब्रिटिश। यहाँ पर जिन हम हंटर्स और गैदरर्स को देख रहे हैं, इनको प्रॉब्लम कब आ रही है? क्योंकि इनके सारे नीड्स जो हैं वो फॉरेस्ट से पूरे नहीं हो पा रहे, इनको बाहर वालों पे, outsiders, they have to be dependent on the outsiders। कौन है ये outsiders? जैसे विलेजर्स हुए, जमींदार्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन सब पे उनको डिपेंड होना पड़ता था अपनी लाइफ के जो भी नीड्स है वो पूरा करने के लिए। और जब भी ट्राइबल्स इन आउटसाइडर्स पे डिपेंड होते थे उनकी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती थी, क्योंकि ये आउटसाइडर्स हमेशा उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ट्राइबल्स को कोई जानकारी तो है नहीं, हम उनके से कुछ भी चार्ज करेंगे वो हमें देंगे, उनको देना ही पड़ेगा। तो ये उनका यही एक्सपीरियंस रहा कि ट्राइबल्स जो हैं का यही एक्सपीरियंस रहा कि जब भी वो इस तरह के मनी लेंडर या ट्रेडर्स के चक्कर में फंसते थे तो फिर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ डेब्ट एंड पॉवर्टी को ही वो लीड करता था, क्योंकि एक उधार को पूरा करने के लिए फिर उन्हें और भी उधार लेना पड़ता था, और इस तरह से ये एक साइकिल चल जाता था और वो और भी ज़्यादा उनकी जिसको कहेंगे पॉवर्टी बढ़ती जाती थी। इसलिए ट्राइबल्स के लिए ये मनी लेंडर, ये ट्रेडर, ये सब जो थे ये आउटसाइडर्स थे, ये सब उनकी मिजरी में बहुत ज़्यादा इजाफा करते थे। एंड दीज आउटसाइडर्स वर नोन एज दीकूज। जो हम दीकूज हमने टर्म यूज़ किया इन्हीं आउटसाइडर्स के लिए यूज़ हुआ, इन्हीं मनी लेंडर्स के लिए, इन्हीं ट्रेडर्स के लिए, इन्हीं ज़मींदार्स के लिए ये दीकूज वर्ड यूज़ हुआ। ब्रिटिश भी उसी में आते, जो भी आउटसाइडर, जो भी ट्राइबल नहीं है, दे ऑल आर दीकूज फॉर द ट्राइबल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ ट्राइबल्स को देखेंगे जो कि ऐसे ट्राइबल्स थे जो कि एनिमल्स की हर्डिंग करते थे, वो द हर्डर्स, है ना, रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स करते थे। हर्डर, अब ये जो हर्डर हैं वो हम जान रहे हैं क्या कर रहे हैं, दे आर हर्डिंग द एनिमल्स, रियरिंग द एनिमल्स, है ना। इनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, जो एनिमल्स की हर्डिंग करते हैं, रियरिंग करते हैं, उनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, दैट इज पैस्टोरलिस्ट। पैस्टोरल से बना है ये शब्द। पैस्टोरल वो हुआ जो कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में चरवाहा, जो एनिमल्स को पालने का काम करते हैं, है ना। तो ये पैस्टोरलिस्ट होते थे, चरवाहा इनको कहा जाता था, जो कि अपने हर्ड के साथ जो उनका एनिमल है, जो कैटल को रखा है उन्होंने, अगर शीप की रियरिंग कर रहे हैं, कैटल की रियरिंग कर रहे हैं, जिसकी भी रियरिंग कर रहे हैं, उसको लेकर, उस पूरे हर्ड को लेकर के, ग्रुप ऑफ जो कैटल है उसको लेकर के उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर हर्ड्स, है ना। क्यों उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था? सीज़न के कारण। सपोज़ जब गर्मी का सीज़न अगर आया तो गर्मी के सीज़न में क्या होता है, ग्रीनरी कम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो वैसे जगह में क्या होता है कि उनको गर्मी के सीज़न में उस जगह को छोड़ करके वैसे जगह जाना पड़ता है जहाँ पर उनको पानी की अवेलेबिलिटी और ग्रास की अवेलेबिलिटी हो,
है ना। तो उनको सीज़न टू सीज़न दे यूज़ टू चेंज देयर प्लेस। एंड फिर ये भी होता है कि कई बार एक जगह पर जो एनिमल्स हैं, जो कैटल हैं, शीप हैं, वो एक जगह की सारी जो पैस्चर है उसको उन्होंने खा लिया, है ना। तो अब क्या होगा, अब उनको नई जगह की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ये जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं ना, दे आर ऑलवेज ऑन मूव, वो एक जगह नहीं रहते। उनको हमेशा अपने एनिमल्स को लेकर के, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसी में हम देखते हैं कि पंजाब हिल्स के जो वैन गुजर्स थे और लबादीज़ जो आंध्र प्रदेश के थे, वो कैटल हर्डर्स थे। इसमें ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, पर्टिकुलरली कौन से कहाँ के ट्राइबल्स किस एनिमल को रेयर करते थे। तो अगर हम देखें पंजाब हिल्स के जो वैन गुजर्स थे, वैन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश। These tribes, वैन गुजर्स एंड लबादीज। वैन गुजर्स ट्राइबल का नाम है, लबादीज ट्राइबल का नाम है। कहाँ, किस जगह को ये बिलोंग करते हैं? वैन गुजर बिलोंग्स टू पंजाब हिल्स एंड लबादीज बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। अब ये जो दोनों ट्राइबल्स हैं, दे यूज टू हर्ड कैटल, ओके, दे वर द कैटल हर्डर्स। दीज पीपल वर कैटल हर्डर्स। ओके, इसके बाद हम देखते हैं गद्दीज ऑफ कुल्लू। गद्दीज ऑफ कुल्लू वर शेफर्ड्स, ठीक है। गद्दीज ऑफ कुल्लू, कुल्लू इज द नेम ऑफ द प्लेस जो कि हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश। तो कुल्लू में जो गद्दीज जो ट्राइबल थे, दे वर द शेफर्ड्स। एंड कश्मीर के बकरवाल्स थे, ठीक है। कश्मीर के जो बकरवाल्स थे, दे वर द दे यूज टू हर्ड द गोट्स, ओके। आई एम राइटिंग दैट ऑल्सो। ये आपका हो गया वैन गुजर्स एंड लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना, दे वर कैटल हर्डर्स। Then Gaddis of Kullu, they were shepherd, and Bakarwals of Kashmir, they used to rear goats. Bakarwals of they reared goat. Okay, so Bakarwal is the name of the tribal, and this tribal belonged to Kashmir. So these were the herders who used to rear the animals, and they were always in move from, they used to move from one place to another place, and जो भी animal produce होता था उसी से उनका सारा कुछ चलता था, है ना। जो भी उनके needs होते थे वो उसी से पूरे होते थे। And now we see the another group of traders who were the settled cultivators. हमने अभी तक कितना देखा? पहला झूम कल्टीवेशन करने वाले, दूसरा हंटिंग और गैदरिंग करने वाले, तीसरा ये हर्डर्स जो थे, और चौथे अब हम जिनको देखने जा रहे हैं वो हैं परमानेंटली जो एक जगह पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, सेटल्ड कल्टीवेशन, है ना। Those who took to settled cultivation, they were tribals but still they took to settled cultivation.
traders, oh, not traders, tribals, yes, tribals who took to settled cultivation. है ना, जो ट्राइबल हैं जिन्होंने कल्टीवेशन को एक ही जगह पे मतलब सेटल फॉर्म में करना स्टार्ट कर दिया। तो ट्राइबल ग्रुप्स में ही बहुत सारे ऐसे थे, ऐसे ग्रुप्स थे जो कि 19th सेंचुरी के पहले ही दे स्टार्टेड टू सेटल डाउन एंड दे स्टार्टेड टू कल्टिवेट देयर फील्ड इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर. They were not doing any kind of shifting cultivation, but they are cultivating their field in one place year after year, and in this way they began to use all the tools, like they were using the plow, they were using gradually they got right over the land they lived on, है ना. देखिए हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं जबकि सब कुछ स्टार्ट हो रहा है ना. What we find that some tribal groups they started to settle down at one place. तो इसमें आपको ये समझना है कि जैसे जब भी हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो ट्राइबल्स हैं, क्या उन्होंने वो ज़मीन किसी से परचेज़ किया एक जगह पर, जब वो सेटल हो गए वहीं पर एक ही लैंड को वो बार बार कल्टिवेट कर रहे हैं, तो हैव दे परचेज दैट लैंड फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम एनीवन? नो. वो जो जगह खाली पड़ी थी जिसको कि कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था, उस जगह पे वो बस गए, है ना, और वहाँ पर वो खेती करनी उन्होंने शुरू कर दी. और धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे स्टार्टेड टू क्लेम देयर राइट ओवर द एरिया, ओवर द लैंड, है ना. वो उस लैंड पे अपना क्लेम करने लगे कि ये हमारा लैंड है, इसके इस पे राइट हमारा है, हम इसके ओनर हैं. इसी तरह से होता है जिनको हम ज़मींदार कहते हैं गाँव का, है ना, जिनको हम गांव का ज़मींदार कहते हैं. तो आपको क्या लगता है उन ज़मींदारों ने गांव की सारी ज़मीन को किसी को पैसे दे के ख़रीदा होगा? नहीं, वो उन्होंने उस पूरी की पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग पावरफुल. पूरी की पूरी ज़मीन वो अपने खेती करना स्टार्ट कर दिया, क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि ये हमारी है. इसी तरह से होता है ना. तो ये जो हम जिनको कह रहे हैं कि जिन्होंने सेटल्ड कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया, वो ऐसे ट्राइबल्स थे जो कि जिन्होंने एक ही जगह पर एक ही खेत पर बार बार अपनी खेती कर रहे हैं और उसको वो क्लेम भी कर रहे हैं कि ये हमारा है ना. और कई सारे ऐसे भी केसेस हैं, जैसे मुंडाज हैं छोटा नागपुर के, उसमें हम देखते हैं कि जो लैंड था वो पूरी की पूरी ग्रुप को बिलोंग करता था. जिस लैंड पे वो कल्टीवेशन कर रहे हैं वो लैंड पूरी की पूरी ग्रुप को बिलोंग करता था, है ना. और जितने भी मेंबर्स थे उस ग्रुप के, वो सभी जो हैं वो ओरिजिनल सेटलर्स के डिसेंडेंट्स माने जाते थे. ओरिजिनल सेटलर्स कौन हुए? जिन्होंने सबसे पहले किसी भी लैंड को इनहैबिट किया, ओरिजिनली सबसे पहला जो किसी भी प्लेस पे सेटल किया. ठीक है, तो इस तरह के भी हमें मिले. जैसे मुंडास की हम बात कर रहे हैं, तो मुंडास जो है उनमें यही माना जाता था कि जो भी लैंड है जिसको कि जैसे मुंडास जो हैं उनके जो एंसेस्टर्स थे, दे यूज्ड टू बी द ओरिजिनल सेटलर्स. अब उनके बाद जितने भी मेंबर होंगे उस क्लैन में, उस ग्रुप में, उस मुंडा में, जितने भी मेंबर आएंगे न्यू जनरेशन के, वो सब जो हैं उस ओरिजिनल उस सेटलमेंट के वो दावेदार होंगे. उन सब का उस सेटलमेंट पे अधिकार होगा, है ना. तो हर किसी का राइट था. ऐसा नहीं था कि कोई ज़मींदार है एक उसमें से और बाकी जो है लैंडलेस है, ऐसी चीज़ें नहीं थी. और जो भी ग्रुप के मेंबर हैं, उस पर्टिकुलर क्लान की को मेंबर है, मुंडा कम्युनिटी के जो भी मेंबर हैं, उन सब का लैंड पे राइट था. दिस वाज वेरी गुड थिंग अबाउट इट.
है ना। क्योंकि जैसे कि हमारे अगर हम ट्राइबल्स के बाहर की लाइफ को देखते हैं तो वहाँ पर इस तरह का नहीं दिखता है, वहाँ पर एक ज़मींदार है, बाकी सारे जो हैं वो लैंडलेस लेबरर्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे जो ओरिजिनल सेटलर्स के डिसेंडेंट्स हैं वो सभी का राइट्स है ज़मीन पर, है ना। हालांकि यहाँ भी कुछ इन्फ्लुएंस तो था, कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल थे, कुछ लोग कम पावरफुल थे, ऐसा था। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एकदम इक्वालिटी थी, है ना। ऐसा होता था कि कुछ लोग जो हैं, कई बार ऐसा होता था कि एक ही कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, कुछ चीफ बन गए, कुछ उसके फॉलोअर्स बन गए, है ना। और इस तरह से पावर का था, थोड़ा सा डिफरेंसेस भी था, बट कंपैरेटिवली कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी थी। So this is all for today. We will continue with this discussion in the next class.